ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିର ଯେଉଁ କିଛି ଯାହା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍, ରିଆଲିଜିମ୍, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍, ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍, ରିଆଲିଜିମ୍, ରିକନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ନିଓ ଲିବରାଲିଜିମ୍। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍କୁ ମେନଲି ଫୋକସ୍ କରିବା ଯେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ଏବଂ ତା'ର ମେଟାଫିଜିକାଲ୍ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଓ ତା'ର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜିକାଲ୍ ଭ୍ୟୁ, ଏକ୍ସିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଭ୍ୟୁ, ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, କାରିକୁଲମ୍, ସ୍କୁଲ୍ କେପରି ହେବାର ଅଛି, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତା'ର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ଏହା ମାନେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ ମେନଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିର ତା'ର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ। ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିରେ ମେନଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଇଡ଼ିଆଜକୁ ଉପରେ ବିଷୟ ହେଲା ମାନେ କିଛି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ମେଟର କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ କିଛି ଅଛି, ବଟ୍ ତାଠୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ହାଏଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ବେଶୀ ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିଲା ମେନଲି ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ଫିଲୋସଫିରେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଓନ୍ଲି, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ ସେମିତି କିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କେବଳ ଆଇଡ଼ିଆରେ ହିଁ ୱାର୍ଲଡ଼ ଚାଲିଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅନଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ଏବଂ ହେଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଡାଇକଟୋମି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଉଛି ଟୁ ଟାଇପ୍ର, ଡାଇକଟୋମି ମିନ୍ସ ଟୁ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଆଲିଟି ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିଆଲିଟି। ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଆଲିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ଯିବେ ଯେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଯିବ, ସୋଲ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମ ରିଆଲିଟି। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିଆଲିଟିରେ ଆସିବ ସବୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଆସିବ ସବୁ କିଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ସୁପେରିୟର୍ ଦେନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ କିଛି ଦେଖୁଛୁ ତାଠୁ ବହୁତ ସୁପେରିୟର୍ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଓନ୍ଲି। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋନାଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ୱାନ୍ ଫିଲୋସଫି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଉପରେ। ହେଲେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ କହିଥିଲା ଯେ ସାଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ସେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା କୋହେରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, କହୁଥିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲା ହୋଲି ଲାଇଫ୍ ପର୍ସନର ହୋଲି ଲାଇଫ୍ରେ। ଦେନ୍ ଆମର ଯଦି କିଛି ଦେଖିବା ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ର କିଏ ପ୍ରପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସକ୍ରେଟିସ୍, ପ୍ଲାଟୋ, ଡେସ୍କାର୍ଟ୍ସ, ସ୍ପିନୋଜା, ଲିବଜେନ୍, କାଣ୍ଟ, ପିଜେ, ହେଗେଲ୍। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଗଲା ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୟାନନ୍ଦ, ଗାନ୍ଧୀ, ଟାଗୋର, ଅରବିନ୍ଦ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଯିବେ। ଦେନ୍ ତା'ର ମେଟାଫିଜିକାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ର ମେଟାଫିଜିକାଲ୍ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ରିଆଲିଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛି, ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ରିଆଲିଟି ବିଷୟରେ କହିଛି ଯେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟି, ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟି। ସେଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯିବ, ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏବଂ ଅନଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍। ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କି ଚାଲି ଆସିଛି ଆମର ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍, ଯେମିତି ଆମେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଆସିଲା ତାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲା ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍। ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଥିବ ଏବଂ ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଥିବ, ଯାହା ସେମାନେ କହି ଆସିଥିବେ ମାନେ ସେଠି ଅବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ହେଲା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ମେନଲି ସୋଲ୍, ଗଡ଼୍ ଏବଂ ଟ୍ରୁ। ସୋଲ୍ ଏବଂ ଗଡ଼୍ ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ଇନଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେବଲ୍, ସେମାନେ କେବେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେବେନି ଏବଂ ଇନମର୍ଟାଲ୍ ରହିବେ, ସେମାନେ ଇମର୍ଟାଲ୍ ରହିବେ। ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ରେ ରିଆଲିଟି ଇଜ୍ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କହୁଥିଲେ, ଟୋଟାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ୍ କହୁଥିଲେ, ଟୋଟାଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମେନଲି ତିନିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ମେନଲି ଏଗୁଡ଼ା ଫୋକସ୍ କଲେ ଯେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ, ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ଗଡ଼୍, ନ ମେଟର୍କୁ ଜମା ଫୋକସ୍ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ। ଦେନ୍ ଯଦି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନେବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଧରା ଯେଉଁ ଗଛଟେ ଅଛି ଏଠି, ଯଦି ଗଛ ଯଦି ନ ରହିବ ତ ତା'ର ଯଦି ଗଛଟା ବି ଯଦି ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ଗଛ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନ ରହିବ ତ ହେଲେ ବି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ ଗଛର ଆଇଡ଼ିଆଟା ଥିବ ଯେ ଗଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ର ରିଆଲିଟି ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ କିଛି, ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟ ଥାଉ କି ନଥାଉ ବଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ସେମିତି ଯଦି ହେଲା ରିଆଲିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଯାହାକି ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଲଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ମାନେ ନଲେଜ୍ କିପରି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ, ନଲେଜ୍ ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନଲେଜ୍, ଦେନ୍ ନଲେଜ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ରିଜନ୍,
माने माइंड एवं रिजन द्वारा ही नॉलेज आमर डेभलप होता है सेन्स ऑर्गन बेस्ड नॉलेज उपर फोकस करते से आमर माने सेन्स ऑर्गन विषय फोकस करते ओपिनियन बेस्ड नॉलेज जी जी किसी ओपिनियन देदेला तो से गुड़ा ही चलो थिंकिंग बेस्ड नॉलेज ट्रू नॉलेज डिस्कवरी फॉर इनर माइंड आमर इनर माइंड जहाँ किसी अच्छी इंट्यूशन द्वारा ही सब डेभलप होता है रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल ट्रुथ बोधे करते धराଯିगला जदि आम किसी एग्जांपल लेके जदि आम किसी ब्यूटी जस्टिस एवं गुडनेस को जदि आम किसी कनसेप्ट को अंडरस्टैंड करने जावा तो सेगुड़ा तो आम आखिर आगे किसी देखा ही जीवनी तो ताको आम किपरि भाव में नॉलेज रे पार्श्व करें तो सेगुड़ा आम इनसाइट आम क्रिटिकल थिंकिंग डेभलप करके सेगुड़ा को जापर जे ब्यूटी कहले एगुड़ा जस्टिस कहले एमती जस्टिस तो गुडनेस कहले ए टाइप देन आम जो देखा एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियोलॉजी एक्सियोलॉजी मीन्स वैल्यू वैल्यू पर से कहते वैल्यू हूँ आब्सोल्यूट इटर्नाल एंड अनचेंजेबल जहाँकि केवे चेंज ही हेनी जहाँ वैल्यू आसी से गुड़ा काल काल चलती देन मोराल और एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू उपर से फोकस करते ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस फोकस करते मेनली ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस जो एग्जांपल लेते जावा टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू डेवलप ऑनेस्टी एंड द कंपैशन नॉट बिकॉज सोसाइटी से बिकॉज द यूनिवर्सल मोरल ट्रुथ टीचर मैंने एनकरेज करते पिला क्लासरूम रे ऑनेस्टी रही कंपासन रही बिकज एटा सोसाइटी एक्सेप्ट करेना एटा है मोराल ट्रुथ से कहते मैंने विदाउट क्वेश्चनिंग से कहते जिन गुड़ा मोराल ट्रुथ देन जदि आम देखा तार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन तो फास्ट एजुकेशनल इम्प्लिकेशन आम देखा तार एम ऑफ एजुकेशन कौन कौन रही एम ऑफ एजुकेशन आइडियोलॉजी एक्साल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कंजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर सेल्फ रियलाइजेशन किपर भाव में हो पार पिलाମାନଙ୍କର एवं यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कर समस्त यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करने सहित सेल्फ रियलाइजेशन होगा सहित पिलाମାନଙ୍କର किपर भाव में फिजिकल डेवलपमेंट हो पार प्रिपेरेसन पूरा होल लाइफ हो पार देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पार इंटेलेक्चुअल मोरल डेवलपमेंट डेवलप करते क्रिएटिव इंटेंस इन्वेंटिव एंड द क्रिएटिव थिंकिंग देन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऊपर अधिक फोकस करते डेवलप यूनिटी इन डाइवर्सिटी कल्टिवेट ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस कैरेक्टर बिल्डिंग परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से फोकस करते देन आम जो कारिकुलम देखा कारिकुलम मेन है ह्यूमानिस्टिक सब्जेक्ट उपर अधिक फोकस करते यह गोटे कारिकुलम नहीं जे एस रोज देते जो आइडियोलॉजी सब कारिकुलम रही अच्छे देन जो आइडियोलॉजी देखा फिजिकल एक्टिविटी से कहते फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ एजुकेशन जीव केयर एंड बॉडी जब तार स्किल डेवलप करने स्किल जीव फिजिकल एक्टिविटी देन कारिकुलम जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी आम किसी करने जावा तो तापर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दरकार मोराल एस्थेटिक एंड रिलीजन जदि आम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे पढ़े लिटरेचर लैंग्वेज हिस्ट्री जियोग्राफी एंड साइंस जदि मोराल डेवलप हम तो आम हिस्ट्री इथिक्स पढ़ाई दरकार देन जब एस्थेटिक पढ़ा एस्थेटिक गुडनेस 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 जोटा कि फाइन आर्ट पढ़ाई पड़े जेहतु रिलीजन विषय जानापी रिलीजन और मेटाफिजिक्स विषय पढ़ाई पड़ो देन कारिकुलम सरला देन आम देखा तार मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन रही है मेथड ऑफ टीचिंग नेरेसन मेथड पढ़ाऊे एक्सप्लेनेसन करके पढ़ाऊे एक्सपोजिशन क्वेश्चनिंग डिस्कसिंग प्ले वे मेथड पढ़ाऊे देन ऑब्जर्वेशन मेथड प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेमोराइजेशन इमिटेशन मैंने रट लर्निंग ऊपर अधिक फोकस करते रट लर्निंग मेथड जदि आम देखिए मेथड एटा तो मेथड बट आम जब एम देखा जे क्वेश्चन आंसर मेथड किए देते क्वेश्चन आंसर मेथड देते सोक्राट्स जदि लेक्चर मेथड कह लेक्चर और डिस्कस मेथड देते प्लाटो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड देते अरिस्टोटल देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड देते डेस्कार्ट प्लेवे मेथड देते फॉरवेल ऑब्जर्वेशन मेथड देते प्लेस्थोलॉजी इंस्ट्रक्शन मेथड देते हार्वर्ड देन आम देखा रोल ऑफ टीचर कौन कौन रही रोल ऑफ टीचर टीचर जो आइडियल पर्सन हो आइडियोलॉजी आइडियल पर्सन हो जार हाई पोजिशन थो मैंने जमी आम पुराणा जो देखिए भारत ट्रेडिशन अनुसार जो गुरुकुल शिक्षा होता से गुरु मानक बहुत उच्च स्थान दिया आइडियोलॉजी गुरु मानक बहुत हाई पोजिशन दिया से कहते से गुरु ही भगवान गुरु परम परम ब्रह्म से कहते गुरु ही भगवान टीचर एज ए गार्डेनर फॉरवेल कहते टीचर एज ए गार्डेनर टीचर मान से कहते टीचर वर्क कर लाइक गाइड फ्रेंड्स फिलोसोफर भाया देन जदि आम रोल ऑफ स्टूडेंट देखा तो से टीचर मान कथा को मानुवे लेस इंपोर्टेंट दिया इंपोर्टेंट दि जाऊना टीचर सेंट्रिक एजुकेशन थी ना से पिला एत इंपोर्टेंस दि जाऊना मेंटेन डिसिप्लिन को पूरा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था मेंटेन करते डिसिप्लिन मेंटेन करवा दायित्व था जब डिसिप्लिन को आम ना तो से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था
इम्प्रेसनिस्टिक डिसिप्लिन थिला आइडियालिज्म रे इम्प्रेसनिस्टिक डिसिप्लिन तापर इंटरनल डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन उपर फोकस करथिले तेला मोराल रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्य रहउतला पिला मानक निज निजर मोराल देन जदि हम तार स्कूल को जीवा स्कूल स्कूल किपरि भाବରେ हो स्कूल ए प्लेस फॉर मोराल एंड इंटेलेक्चुअल एंड द स्पिरिचुअल ग्रोथ जहाँ जोटि पिला माने मोराल डेवलपमेंट करथिले इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जाउथिले एवं स्कूल गोटे होता टेम्पल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग स्कूल को ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେନ୍ ସ୍କୁଲ କିପରି ହେଇଥିବାର ଅଛି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ର କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଟୋଟାଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋରାଲ ଫିଜିକାଲ इमोशनल डेवलपमेंट होता है मोराल और स्पिरिचुअल एजुकेशन उपर से फोकस करता टीचर्स रोल किपर भाव में अच्छे से कहता भैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाता मोराल भैल्यू जमी दी जाता इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उपर फोकस कर कल्चरल इन्फोसिस दी जाता निजर कल्चर को पढ़े से रिलीजन विषय पढ़े निजर कल्चर कौन कही विभिन्न प्रकार सेल्फ डिसिप्लिन फोकस कर सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फोकस करते देन जदि आम देखा यहाँ तो सब गला आइडियालिज्म विषय जदि तार वीकनेस लिमिटेशन कौन कौन रही है आइडियालिज्म जहाँद्वारा कि एवं आम आइडियालिज्म को एत फॉलो करूना स्कूल गुड़ा तो देखिए जैसे मैंने फास्ट नेग्लेक्ट करुले मटेरियल एवं फिजिकल वर्ल्ड उपर मैंने से ओनली आइडिया उपर फोकस कले जब किसी गोटे जिन आम एक्जिस्ट करुँच तो सी फोकस न करी ओनली तार आइडियाज उपर फोकस करुले से जिनसा माइंड रे आइडिया होती फोकस करते से आइडियालिज्म यह गोटे लिमिटेशन तेल ओवर एम्फासिस दौले माइंड और आइडियाज उपर लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लिकेशन टोटाली थी से ओनली थियोरेटिकल दिया इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस को गुरुत्व देना पूरा ट्रिट करुले गोटे समस्त एका भाया ट्रिट करते टीचर रोल थी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से इंडिविजुअल डिफरेंस को एत दौन देन अथॉरिटेरियन रोल ऑफ टीचर को रोल को से अथॉरिटेरियन रोल ऑफ टीचर कह बोले स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर जहाँ कहे से गुड़ा हम टीचर सब किसी करेंगे टीचर मैंने जहाँ कहे मैंने मानवाई बाध्य समस्ते नेग्लेक्ट करते वोकेशनल और साइंटिफिक एजुकेशन को गुरुत्व दौन टोटाल डिफिकल्टी इन मेजरिंग ग्रोथ मैंने पिलाମାନଙ୍କର एजुकेशन पाइबा द्वारा केते दूर ग्रोथ है सेगुड़ा भी मेजर किसी कर सपोर्ट करते रट लर्निंग को जहाँकि बहुत पिलाମାନଙ୍କ पक्षरे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पकई रट लर्निंग देन आम जो देखा तर कौन कौन फॉर्म्स रही है आइडियालिज्म वैरायटी प्रकार टाइप्स कौन कौन रही है देखो टाइप्स रही है सब्जेक्टिव आइडियालिज्म अब्सोल्यूट आइडियालिज्म ऑब्जेक्टिव आइडियालिज्म फेनोमेनल आइडियालिज्म डुअलिस्टिक आइडियालिज्म प्लुरालिस्टिक आइडियालिज्म यदि हम देखा सब्जेक्टिव आइडियालिज्म देते बार्कले सब्जेक्टिव आइडियालिज्म देते LEY बार्कले देते देन एगुड़ा तो नेक्स्ट क्लास में एगुड़ा को डिस्कसन करवा भल भाव में ये फॉर्म्स गुड़ा कौन कौन ये खाली जस्ट देख देते सब्जेक्टिव आइडियालिज्म देते बार्कले देन अब्सोल्यूट आइडियालिज्म देते प्लाटो जहाँकि मटेरियलिस्टिक आइडियालिज्म उपर गॉड इज रियल उपर से कहते अब्सोल्यूट आइडियालिज्म देते सॉरी अब्सोल्यूट आइडियालिज्म देते हेगेल देते अब्सोल्यूट आइडियालिज्म देन है ऑब्जेक्टिव आइडियालिज्म देते प्लाटो ऑब्जेक्टिव आइडियालिज्म जोटी कहते कि से गॉड इज ओनली रियल जहाँ गॉड ताहा ही सब किसी देन है फेनोमेनोलॉजिकल आइडियालिज्म जे कि देते इमानुएल कांट फेनोमेनोलॉजिकल आइडियालिज्म देन है डुअलिस्टिक आइडियालिज्म जहाँ देते रेने डेकार्ड्स गोटे बहुत बढ़िया कोटे अच्छी जे कॉग्निटो इरोसम जोटा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम से बढ़िया गोटे कोटेसन देन आउ गोटे लास्ट रहा प्लुरालिस्टिक आइडियालिज्म देते लिप्जिग जहाँकि मैनीनेस आइडियालिज्म मैंने बहुत प्रकार से गुरुत्व दौते तो आम नेक्स्ट क्लास रे नेचुरालिज्म विषय पढ़ा।